People manifest success, but I manifested karmas. Am I some sort of a fool? Let's figure that out in this video. So, I have some shocking truths for you in this video, especially for somebody who was really after manifestation, something like this. So, let's just talk around it. So, manifestation is very much a Western idea, right? And I'm not completely against that idea. Yes, there are certain spiritual techniques and you can manifest and stuff like that, but somebody who is really on a spiritual path, who is a serious spiritual seeker, manifesting your desires is just a temporary relief, okay? And maybe your soul wants it, you can have it if you want to, but I would just very strongly suggest to avoid it. Why am I saying it? You will just know it, as you go along the video. So, yeah. Now, I have always been, a seeker of truth, a spiritual seeker I am. So, these, ideas of manifestation, manifesting your desires and stuff I didn't find it fancy. I would like to say that. I didn't very much find it fancy or something like that, you know. Because I'll tell you why. Once you are on a spiritual path, one thing that will happen with you is, you're really seeking truth, okay? You're really seeking truth. You are not, you don't want to open your third eye chakra or kundalini, or I don't know what. You are really seeking truth, okay? And these things might happen to you, okay? And might not happen to you. Who cares? Okay? Just don't bother yourself over these stuff. But if you're really seeking for truth and you're really focused, then I would like to tell you that once you are on a spiritual journey, you evolve and ascend. One thing that really happens to you is that your mind changes. Okay? जो मन जो माइंड आपका 10 साल पहले था, 2 साल पहले था, 1 साल पहले था, 1 मिनट पहले था, 1 सेकंड पहले था, वो चेंज हो जाता है. ठीक है? The very first thing that happens is that your mind changes, and the more focused you are on a spiritual journey, the more rapidly it changes. So when your mind changes, okay, the type of desires that your mind is going to have will also change, okay? So you might have some kind of a desire, in when you are in certain level of consciousness, then you'll have a certain kind of a mind, okay? Your consciousness decides the kind of mind you're going to have. So desires are a phenomena of mind, first of all, right? And yeah, so yeah, the kind of mind you're going to have, the kind of desires you're going to have, dear. So as you move on your spiritual journey, your desires change. मेरी भी बहुत desires change होती गई, मोल्ड होती गई, एंड बहुत क्विकली कई बार मोल्ड होती थी, इतना कि मेरा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाता था. ओके, मतलब it was like, okay, I don't want this now. Okay, I wanted this so damn, like a year ago or like 2 months ago, but I don't want this now. What's wrong with me? Something like this is going to happen to you, okay, when you are really on your spiritual journey, okay? Manifestation is different, okay? It's not something like you're on a spiritual journey. Yes, you may use some spiritual stuff, to manifest and stuff like that. Yes, there are spiritual techniques that you can manifest and stuff like that. I am not completely against it, but for a real spiritual seeker, I mean, I was a very deep soul and it didn't really soothe me, okay? So yeah, I didn't like the idea, right? So yeah, let's just, it was more of like, जैसे असुर नहीं आ जाते थे, जैसे अगर आप हिंदू माइथोलॉजीज देखते हो, सब देखते हो, असुर नहीं आ जाते थे कि हमें ये वरदान दे दो कि हम मर ना पाए और ये हो ना. आई थिंक इट जस्ट मैनिफेस्टेशन थोड़ी थोड़ी वैसी नहीं लगती. जस्ट थिंकिंग, ओके, जस्ट थिंकिंग. जैसे असुर के डिज़ायर्स होते थे कि हम मर ना पाए, हमें सबको मारने की ताकत आ जाए, एंड आई डोंट नो व्हाट स्टुपिडिटी दे यूज्ड टू, क्योंकि वो उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था ना.
तो वो मांगते थे। वो यार मैंने अभी रिसेंटली वो देखी थी रील, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। उस रील में था, you know, again I'm forgetting the name of the person, but he writes amazing poems, and I find him very spiritual, okay? And he's the husband of that lady who came in that movie in which there was Salman Khan and her, you know, it's a very old movie. भाभी तेरा देवर दीवाना वाली मूवी नहीं थी वो? उसके अंदर जो हीरोइन थी ना, उसका जो पति है ना, that's how I remember. I can't help it. I don't remember the name. So उसका जो हस्बैंड है ना, वो बहुत अच्छी, you know, he is an amazing writer. I'm in awe of him. So उन्होंने बहुत अच्छी एक दिखी थी मेरे को, अभी एक रील दिखी उनकी, और उसमें रील में वो यही बता रहे थे कि कोई शिव से मांगता है और कोई शिव को मांगता है, ओके? तो वैसे तो मतलब शिव को भी क्यों ही मांग रहे हो यार, उनको भी ही वॉन्ट्स टू ऑल्सो गो, पता नहीं उनको तुम्हारे पास रहना नहीं रहना, ये भी तो सोचो थोड़ा सा। बट या मतलब बट फिर भी आप कॉन्शियसनेस लेवल समझ रहे हो, यू नो, जो आपका कॉन्शियसनेस लेवल होगा आपकी वैसे ही डिज़ायर्स होंगी, ठीक है? अब असुरों की डिज़ायर क्या होती थी, जो राक्षस होते, जो डीमंस होते थे, उनकी डिज़ायर क्या होती थी कि हमें ये शक्ति दे दो, हमें ये शक्ति दे दो। और मैं ना, अब मैं जब टीवी में ऐसे बैठे होते हूँ, मैं सोच रही हूँ यार इसने ये क्यों नहीं मांगा कि मेरे को संतुष्ट कर दो, कि मेरे में डिज़ायर मांगने का कुछ रो है, मतलब मुझे संतुष्ट कर दो यार। ये भी तो मांग सकता था, ये कितना गधा है। ओके, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रांगली जजमेंटल, but towards an asur, but yeah, but we can ask that, no? मतलब ये भी तो मांग सकता था कि मेरे को संतुष्टि दे दो, कि मेरे को कभी मांगने का मन ही ना करे। तो क्या मस्त मांगता है यार ये बंदा, और कितना चिल होके जीता, किसी आइलैंड वाइलैंड पे जाता और चिल होके जीता, पता नहीं अपने आप को 10 प्रॉब्लम में डालेगा, पहले हैं करके हंसेगा, एंड यू नो हाउ असुर्स आर, राइट? हाउ डीमंस आर। सो या सो आपका माइंड जब चेंज होता है, आपके डिज़ायर्स चेंज होते हैं, ठीक है? और मेरे भी डिज़ायर्स चेंज होते गए, यू नो। और सच बोलूँ तो जैसे जैसे आपका मन चेंज होता है ना, आपके डिज़ायर्स ना बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते जाते हैं। मतलब आप अपने बारे में कम, मतलब इट बिकम्स मोर ऑफ लाइक, यू नो, आपके अंदर थोड़ा सा कंपैशन ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है? आप जब स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो, यू गो ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, देन आपके अंदर बहुत कंपैशन आएगा, काइंडनेस आएगी, एंड आपके डिज़ायर्स भी वैसे ही हो जाएंगे, यू नो, समवेयर दैट I can, God help me become your medium, you know, to help this or to do this, you know. ये तो थोड़ा सुपर हीरो वाला थोड़ा आ जाएगा कि, you know, save the world and stuff like that. So that's exactly what I want to say. It will happen to you, okay? Because you will start to realize and understand how we are all connected, and, you know, how together our collective energy decides, you know, what will go on the planet right now. अभी क्या हो रखा है हमारे प्लानट पे कि सिस्टम्स डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस रोएंगे या हंसेंगे। ह्यूमंस इतने स्लीप में है, इतने स्लम्बर में है, इतने हेल्पलेस हैं, इतने अनक्रिएटिव हो चुके हैं दैट उनको लगता है कि सिस्टम्स को हटाना है तो रोड पे जाके रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। ये तो हमारी हालत है। हम बहुत क्रिएटिव तरीके से भी सिस्टम्स को बदल सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं, बट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग सो रहे हैं और हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हेल्पलेस क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, स्पिरिचुअली अवेक नहीं है। दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ओके, ऑन द प्लानट राइट नाउ। So let's come back to the point. Then the point was that your desires will mold. अगर आप एक सच्चे spiritual seeker हो, first thing will happen to you is आपके desires mold होंगे। Then आपके desires धीरे धीरे कम भी होने लगेंगे, okay? Your desires will fall down, okay, in numbers, slowly, gradually, okay? That also happened to me, okay? My desires, like, you know, they stopped, you know, the numbers decreased, okay? That it's a sign. The less the desire you have, the more santushti you're going to feel, okay? What's the English word for santushti? Satisfaction.
So the less desires you have, that the more satisfaction is getting into you. Okay, when you're on your spiritual journey, you're having the true knowledge, you're having the true wisdom, then what will happen to you? You will start feeling satisfied, and you will understand and realize how stupid my stupid desires were, a year ago or a month ago. Now my desires have changed, so you will shed it on its own. Okay, आई नो स्पिरिचुअलिटी में कुछ फेक रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सब ऐसे बोलते हैं कि इच्छा मत करो, ये मत करो। आप मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बताना चाहिए कि ये वाली इच्छा हम क्यों ना करें। ऐसा ज्ञान दो, यू नो ऐसी नॉलेज दो कि वो डिज़ायर अपने आप ही शेड हो जाए, इज़न्ट इट? देखो, दो तरीके हैं डिज़ायर को शेड करने के। या तो जो आपकी डिज़ायर है, यू गो आफ्टर दैट डिज़ायर, यू मैनिफेस्ट इट फॉर योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ, फॉर अ डिज़ायर एवरीथिंग, एंड देन यू रियलाइज द स्टुपिडिटी ऑफ इट, एंड देन यू कम बैक कि यार ये क्या करा मैंने। तो stuff like that. You getting me? One thing is that you experience it and you understand it. One thing is that if you really get a guru or something, get a master or something, then they may shed some light over it and may help you to release that desire very naturally. You know, it has to be very silent. Okay, it doesn't have to make noise. आज तो मैं ये desire करूँगा ही नहीं और मैं नहीं, something like, it doesn't have to be like something like, it doesn't have to be a pushover or something. It has to be very silently just happen, like how a tree shed its leaves. That's exactly how it happens. You cannot push it कि भैया मैं तो ये डिज़ायर नहीं करूँगा. You cannot push it, dear. That's how it works. Okay, that's how spirituality works. It's a healing process. How wounds are, when they heal, they take their own they take their own fucking time. I don't know. I just feel very troubled. Should I abuse or not? I don't know. Just whatever. Okay. So because I don't know. Like, I mean, I am comfortable abusing, but it's more of like the audience is, may not like it or something or whatever. Okay. So yeah. One thing is that your mind will change when you are on a spiritual journey. Your desires will change. Okay, watch yourself, how your mind grows, okay, and how it changes its desires. Watch it. And you will also have less number of desires. And if you'll have desires, maybe you want to have a highest order of desires. Okay, so like, I want to know the truth, ये भी तो एक desire ही है ना, तो आपकी highest order of desire हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगेंगी। तो so yeah, that's exactly what I want to say. Okay, now one more thing I wanted to say here, that everybody manifest. सब इंसान manifest करते हैं, everybody. Either you are manifesting it consciously or unconsciously, you are manifesting dear. Okay, one thing is that, how I was on the other day, I looked at my plants, okay, and so beautifully, two baby spiders, they made their webs, and they were like kind of facing each other. They made their webs, small webs, and it was so pretty. And I just wanted to take a shot from my camera, but my camera lens was not that, that much that could just, take the picture of the web, but the web was so beautiful. I loved it. There was these small webs that they made, the baby spiders, and they were sitting in the center of it. So that's exactly whatever is around you, you are manifesting it. You have manifested it for you. Whatever, even if you're into trouble, you're pain, into suffering, whatever, you are that spider and you are sitting at the center of it. You have manifested it for you. I know it may look like it's an external thing, but it is not. Your mind is going to tell you it's an external thing, but increase, expand your mind, and one day you have to even shed your mind. Okay, that's how a spiritual journey is. You will expand your mind, and then one day you will have the knowledge of why this is so. One day you will shed it. I mean,
After that, definitely you're going to shed it. Do you know that? You're going to shed this mind. Okay, the programmed mind. You're going to shed that mind. Some of the secrets of universe are so beautiful. Okay, whatever. Yeah. So everybody manifested. आप चाहे consciously manifest कर रहे हो, unconsciously manifest कर रहे हो, सब manifest कर रहे हैं. आप suffering manifest कर रहे हो, आप pain manifest कर रहे हो, आप happiness manifest कर रहे हो, आप joy manifest कर रहे हो, peace manifest कर रहे हो, whatever. You are at the center of it, right? Okay, now let's come to my experience. Why I manifested my karmas. So I am a very much of a deep soul. Okay, so I manifested what, um, as I told, I was not really, fancied or romanticized this idea of manifesting my desires. अरे यार मुझे एक बहुत अच्छा सीन याद आ गया. आपने हैरी पॉटर देखी है? If you've seen Harry Potter, then I think it's in the first movie or the second movie. Harry Potter sits in the front of a mirror. Okay, he walks into a room by accident, and he is sitting in this front of a mirror, and the mirror name is Mirror of Erased or something. और आप erased को अगर उल्टा करोगे then it is desire. So बहुत I don't know, J.K. Rowling is, I don't know, I love her. मुझे बहुत स्पिरिचुअल मूवी लगती है हैरी पॉटर. तो वो आपको सीन आपको कहीं मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, टू सर्च इट यार, बहुत प्यारा सीन है. सो ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और हैरी पॉटर के पेरेंट्स नहीं होते हैं. तो ही सिट्स इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ही सीज इन द मिरर इज हिज पेरेंट्स. And he keeps sitting there for a day or something, and he looks at how उसके पेरेंट्स उसके साथ में है, क्योंकि वो उसकी डिज़ायर थी हमेशा से. उसने अपनी फैमिली को कभी देखा नहीं, अपनी फैमिली के साथ कभी रहा नहीं. उसका जन्म होते ही उसके पेरेंट्स चले गए थे. देन that was his desire to be with his parents, and I loved that scene. And then Dumbledore comes. He's an archetype for a wise old man, Dumbledore. And I just love his beard, yaar. It's long and everything and white. And I love Dumbledore. Honestly, it's not in that video. I mean, the movie. So Dumbledore comes and explains Harry Potter that if you may keep sitting here, okay, this mirror is going to keep you here, okay, forever. And this is something that you like. That is something that you want. But you cannot have it because it is in the past, isn't it? तो एक ऐसी desire पे don't waste your time. It will just, we like to romanticize that pain somewhere, and it's not even romanticizing the pain, but yeah, that boy must have felt it. जिसके parents नहीं and something, he must have felt it, isn't it? So yeah. So he sat in the front of that, mirror, and Dumbledore comes and explains. And there are very beautiful dialogue, at that point. I don't know, ma'am. Should I pause and get that dialogue for you? वो dialogue बहुत अच्छा dialogue है यार. Let me get that dialogue for you. But फिर मेरा flow टूट जाएगा. But let me get that dialogue for you. So thank God I paused the video in between और मैं गई ये dialogues लेने, because these dialogues are really pretty dialogues. So Dumbledore enters and says, Harry Potter, Mirror of Erased, shows us nothing more than the deepest desires of our hearts. तो उसके डायलॉग है Dumbledore के, ठीक है. But the key is, the happiest man on earth would see himself exactly as he is. ठीक है, लेकिन जो हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ होगा ना, वो अपने आप को एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा वो है उस मिरर के अंदर. ओके, सो आई फाउंड इट टू ब्यूटिफुल. जो सबसे ज़्यादा खुश इंसान होगा ना, उसकी डिज़ायर्स होंगी ही नहीं. वो अपने आप में इतनी फुलफिलमेंट फील करेगा ना कि उसे डिज़ायर्स का मन नहीं करेगा. तो जितना अनफुलफिल्ड होगा ना अंदर से, उसकी और डिज़ायर्स होंगी. ठीक है, अब जैसे अब आप देखो हमारे नेशन में कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है. इसका क्या तात्पर्य है? आई एम यूजिंग टू मैनी हिंदी वर्ड्स नाउ डेज, बिकॉज आई गेस मैं शिव शक्ति देख रही हूँ.
तो उसमें बहुत हिंदी वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आई डोंट नो, जस्ट गेटिंग ऑन माई माउथ. सो या आई मीन प्योर हिंदी हो रही है, व्हाटएवर. सो इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि मैं क्या बता रही थी. गॉड गॉड मैं क्या बता रही थी. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन. तो हमारी कंजम्पशंस कैसे बढ़ रही हैं रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग क्लोथ्स, अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन अराउंड फूड, अराउंड क्लोथ्स बहुत बढ़ रहा है. ओके. एंड इट्स सैड समवेयर. ओके. और हम जनरेट कर रहे हैं कर्मास, ठीक है, अगेंस्ट टूवर्ड्स मदर अर्थ. अच्छा, अब इंग्लिश लैंग्वेज ना बहुत लाइक कैसे समझाऊँ मैं, मतलब कोई हम कर्मास किस देख, ऑफ कोर्स वी आर एक्सप्लॉइटिंग मदर अर्थ, बट हम कर्मास जो होते हैं ना वो अपने लिए ही क्रिएट कर रहे हैं. कर्मास मतलब कि हम बॉन्डेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जा रही थी, एक पॉइंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज लाइक मैं पर्ज कर रही थी, आई वाज पर्जिंग माई फियर एंड इमोशन स्टफ लाइक दैट. तो मेरे को बहुत मूड स्विंग्स होते थे उस वक्त. एंड टू सप्रेस टू yeah, to suppress is exactly the right word. To suppress my stuff inside me that I was purging, I used food to suppress it. So I used to have food whenever I wanted to feel good. Okay. And I had, I was literally damaging my body in many ways. I was having a lot of junk food, and that too, I mean, not that lot of junk food, but I was having. And I basically मैं spiritually तो अपने आप को बहुत damage कर रही थी. I was using food to damage, to suppress my emotions, but I was damaging. माइंड को तो हम रिलैक्स करने के लिए फूड यूज़ करते हैं, बट बॉडी, व्हाट अबाउट द बॉडी? बॉडी इज़ नॉट आस्किंग फॉर इट. आप उसको ओवर फेड कर रहे हो, ठीक है. यही तो प्रॉब्लम है हमारी आजकल, कि हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हैं. वी आर टू कनेक्टेड टू आवर माइंड एंड वी बिलीव इट टू बी टू सो ट्रू. हमें हमारे फियर्स ट्रू लगते हैं. फियर्स किस चीज़ के होते हैं? जो चीज़ें अभी तक हुई भी नहीं है. फियर्स उन चीज़ों के तो होते हैं, इल्यूजन ही तो होता है फियर, ठीक है. अभी तक ये हुआ ही नहीं है और हम उसको फियर कर रहे हैं, ठीक है. एंड आई रियली यूज टू थिंक, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है. देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज टू हैव लिव्ड लाइक दैट, वेयर आई रियली थॉट दैट माई फियर्स आर ट्रू. मुझे बहुत टाइम लगा अपने फियर्स में निकलने के लिए और समझने के लिए फियर इल्यूजन्स हैं. पता है कब हुआ ये? व्हेन आई रियली फेस्ड माई फियर्स. तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए व्हेन आई वाज, माई इंट्यूशन आस्क्ड मी टू गो एंड फेस माई फियर्स एंड आई डिड फेस देम हेड ऑन. मतलब इट्स लाइक कि वो सिचुएशंस मेरे पास पहले आए, मैंने ही जाके खाई में जाके छलांग लगा दी. इट वॉज समथिंग लाइक दैट, अगर मैं उसको एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो. So rather than that coming to me, I went to it myself because I was like, I want to face it myself that way. And मेरा उस वक्त फियर चला गया, बिकॉज जब मैं सच में ऐसी सिचुएशंस में गई जिनसे मुझे डर लगता था, when I really went into that situations, I found कि मैं हैंडल कर पा रही हूँ. ऐसा नहीं था मुझे पेन नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था that I was not feeling, I was feeling good and fine. No, मुझे पेन था, I was not feeling good everything, but मेरा फियर चला गया. कि मेरा फियर बेसिकली, हमारा फियर क्या होता है? फियर बेसिकली होता है कि यार हम कर नहीं पाएंगे. मतलब मेरे फियर्स यूजुअली ये थे कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊँगी. आई वोंट बी एबल टू सेव माई सेल्फ, वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सो दीज आर योर यूजुअल फियर्स, या मैं ये कर नहीं पाऊँगी. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हम आजकल बहुत ज़्यादा माइंड से कनेक्टेड है, अपनी बॉडी से लूज़ करते जा रहे हैं कनेक्शन. तो जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ ना, वन थिंग व्हाट आई डू इज़, कई बार ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा होता है ना, व्हाट डू आई डू इज़, और चलता तो है ही, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है. माइंड को आप रोक नहीं सकते, यू डोंट हैव टू स्टॉप योर माइंड, इट्स फाइन. ओके. ग्रेजुअली वो अपने आप ही आप समझते जाओगे कि
इसमें इतनी बकवास पता चलती है ना, इसका यूज़ ही नहीं है ज़्यादा कुछ। इसका यूज़ है बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। ओके, हम इसको भगवान मान रहे हैं, माइंड को हम बहुत भगवान मान रहे हैं। सो वन थिंग दैट आई डू इन माई मेडिटेशन इज़ कि जब मैं मेडिटेशन के लिए कई बार बैठती हूँ, देन आई स्विच ऑफ माई फ़ैन। ओके, उससे क्या होता है कि मैं माइंड से ना अपनी बॉडी में आ जाती हूँ कि यार बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। एंड धीरे धीरे आप देखते हो, आपकी बॉडी इज़ लिटरली अ ब्यूटिफुल मशीन। आप धीरे धीरे ना आपकी बॉडी जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है ना उसके साथ maybe you'll sweat a little for some time and then it will just gradually cool itself, according to the temperature outside. ठीक है, आप पंखा चलाओगे, आप एसी चलाओगे, देन वैसे ही बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगी. सो बॉडी इज़ अ परफेक्ट मशीन. इट इज़ acting every moment, every second to keep you, to keep us alive, to keep us stupid idiots alive. It is doing everything every moment. That is why it is said कि आपको you should thank your body. So yeah. तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा माइंड में रहते हैं ना, इसलिए कहते हैं हमें ब्रेथ्स पे ध्यान दो. समटाइम्स हमें कहा जाता है. तो इससे क्या होता है कि हमारा अवेयरनेस शिफ्ट होती है और हम रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ इज़ सच अ बिग पिक्चर. और हम इसे छोटे से दिमाग के छोटे से चीज़ों पे बिलीव करना थोड़ा बंद कर देते हैं. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ माइंड वर्क्स, राइट. सो हम कंजम्पशन बहुत कर रहे हैं, मैं इस पे थी, राइट. वी आर मेकिंग अ होल लॉट ऑफ कंजम्पशंस नाउ डेज. और बेसिक चीज़ों पे आप देखो, क्लोथ्स पे देखो, बिकॉज ह्यूमन्स के लिए तो क्लोथ्स बहुत शेम और गिल्ट से रिलेटेड है. ओके, सो आप देखो बेसिक चीज़ों पे, हम किसी और चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बेसिक बुक्स पे करो ना यार. बुक्स पे करो, पेंटिंग्स पे करो, आर्ट की हैंडीक्राफ्ट्स पे करो, आर्ट की चीज़ों पे करो. इट्स सो ब्यूटिफुल, है ना. वो यूज़लेस नहीं है, ठीक है. एक तो आजकल अगर बोलो ना यूज़लेस और यूज़फुल, तो यूज़लेस में ना आर्ट की चीज़ों को डाल दिया जाता है कि बुक्स हो गई या फिर आई डोंट नो व्हाट. वो यूज़लेस चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. बट हम बहुत जो बेसिक सर्वाइवल वाली चीज़ें हैं ना, हम उनमें कर रहे हैं. या सो फूड एंड क्लोथ स्पेशली, ठीक है. फूड और क्लोथ्स पे जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं. दैट मीन्स दैट जो हमारी पॉपुलेशन है राइट नाउ इज़ मोर इज़ लुकिंग फॉर फुलफिलमेंट. ओके, एंड वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड. ओके, अच्छा वैसे डू यू नो वाई कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस करता है डिस्ट्रैक्शन को. ठीक है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं. ओके, सो नाउ वी हैव फ्राइडे मूवीज़, यू गो एंड वॉच अ मूवी, एंड समटाइम्स वॉचिंग अ मूवी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, व्हेन यू गेट टू लर्न फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ मूवीज़ एंड एवरीथिंग. एंड देन देयर आर मूवीज़ विच आर जो हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है इन अ रॉन्ग वे, राइट. जैसे कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवीज़ देखती हूँ दैन इट्स नॉट गुड फॉर मी. ओके, आई मीन आई फील कि मेरा subconscious mind, मुझे something inside me, my intuition always stops me from watching something really violent. I can't watch it. It's just because I'm also a very sensitive person, right. So one thing is that my body doesn't like that experience at all. Okay, yeah, intuition sometimes is more in your body than in your mind. Okay, so intuition is like soul intuition भेज रहा है, ठीक है. एंड वो ज़्यादा आपकी बॉडी से भेजता है कई बार इंट्यूशन. जो ईगो होती है ना वो ज़्यादा कई बार माइंड में प्ले करती है, ठीक है. ईगो माइंड से वर्क करवाती है और जो सोल है वो बॉडी से वर्क करवाता है. हम ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट्स लाइक exactly that is how it is. No, sometimes soul uses the creative mind. Okay, जो एक हेल्दी माइंड होता है कई बार, जैसे अ माइंड विच इज़ वेरी वेरी रिजिड. ओके, दैट मीन्स वो इकोइक माइंड बन गया, ठीक है, कि मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है, या ये अच्छा और मैं बुरा हूँ, ये दोनों ईगो है, ठीक है. कंपैरिजन ही ईगो है, मतलब बहुत ही रिजिड माइंड हो जाना. अगर मैं ये बोलूँ कि एक एप्पल ट्री है और एक मैंगो ट्री है, सो आप बोल सकते हो कि मैंगो ट्री इज़ मोर प्रीशियस एंड एप्पल ट्री इज़ नॉट, और एप्पल ट्री इज़ मोर प्रीशियस एंड मैंगो ट्री इज़ नॉट. नो, बोथ आर रिक्वायर्ड. और आप देखोगे उनके जोग्राफिकल एरियाज़ भी डिफरेंट है. ओके, एंड वेयर दे आर रियली नीडेड, कोल्डर रीजन्स में एप्पल होता है बिकॉज दैट्स गुड. समबडी वो स्टेज इन मोर
colder regions, वहाँ पे apple is necessary, for the kind of nutrients that a person would want, when he stays in a very colder region. So everyone has its specific, abilities and duties, okay? लेकिन जो एक rigid mind हो जाता है ना, बहुत वो egoic mind हो जाता है. So जो एक healthy mind होता है ना, वो बहुत vast होता है, और वो नैरो नहीं होता है, ब्रॉड होता है, ओपन माइंडेड होता है, राइट? और वो हर चीज़ में अच्छा बुरा नहीं देखता है, वो इट ऑल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड, ओके? सो या वो एक हेल्दी माइंड होता है. सो कई बार एक क्रिएटिव माइंड से भी सोल काम करवाता है, ओके? जो आपका स्पिरिट है वो कई बार एक हेल्दी माइंड से काम कराएगा. जब आपका स्पिरिट है वो कई बार आपकी बॉडी से भी इंट्यूशन आपको भेजता है, ठीक है? So yeah, one thing is this, okay? So I talked about consumption, right? So I hope you got the idea. Also, I was watching a Hindu myth. Hindu myths nowadays, Shiv Shakti aata hai colors pe, and I watched that quite, nowadays, and they are so beautiful stories. I mean, they just make so much sense, मतलब it's like a whole, मतलब beginning और end सब मतलब बहुत ही जैसे I would have to say R.K. Narayan, or even there's this one more guy, please God let me remember his name, just so bad at remembering names. This guy was born in Missouri. What is his name, yaar? He's a very famous writer, यार. He's also very, मुझे ऐसे बहुत कम राइटर्स हैं जिनकी जो स्टोरीज़ होती है ना वो मतलब दे आर वेरी होल इन दैम सेल्व्स, ओके? एंड देन देर आर मूवीज़ एंड स्टोरीज जिसमें ना सब कुछ it doesn't make sense, at times. I mean, anything and everything is life, and I get it. But कुछ स्टोरीज़ होती हैं ना, उसमें एक कोहेसिवनेस, एक पकड़ के रखना, एक बाइंड करके रखना एक थीम को. तो वो जो स्टोरीज़ है वो कितनी ऐसी बहुत जैसे कुछ पंचतंत्रा की स्टोरीज़ हैं, दे आर वेरी रिच, आई फील. नॉट ऑल, बट दे आर वेरी रिच. दे आर शॉर्ट एंड येट जस्ट शॉर्ट, क्रिस्प एंड सो रिच. Even Shiv Shakti, जो उनकी stories, I think they have taken these stories from Shiv Purana. I've never read Shiv Purana, honestly. But yeah, I was watching these stories, and they are so rich, they are so cohesive, and they are so put together, and it just makes super sense. There are still some, there's a Harry Potter. I feel it's a very, put together, it just ऐसा लगता है जैसे life, like your spirit has written it, ऐसा महसूस होता है. कुछ हैं मूवीज़ जो बिल्कुल ही ऐसा फील होता है कि यार ये तो गलत ही प्रोग्रामिंग कर देगा हमारी माइंड को. और ऐसी कुछ होती हैं मूवीज़, होती हैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो ऐसा लगता है वाओ, ये कितना गहरा बता रहे हैं, कितनी गहरी चीज़ें बता रहे हैं, हाउ डीप दे गो इनटू इट. सो हिंदू मिथ्स में भी अगर मैं आप देखूँ तो जो असुर होते थे ना, जो demons होते थे, they were the ones who used to ask majority of wishes. They were the ones who used to ask desires. They had the most of desires, ठीक है? तो और जो देव होते, एक तो असुर होते थे और एक देव होते थे. So देवो, yes, they also had, like Indra was also very much wanted to be, Indra also wanted seat, ठीक है? उसको भी throne चाहिए था. इंद्र में भी थोड़ा greed था, right? But he was still better than asurs, or maybe not, I don't know. But yeah, I think, I mean, मैंने अगर असुर्स को देखो, अगर demons को देखो, so they were very disrespectful towards women also, okay? Certain women, who are not their mothers and wives and daughters. So they were like little disrespectful to women. Whereas देव लोग जो देव में थे, जो gods थे, आप कह सकते हो, who were subordinate gods. क्योंकि देवों के देव तो महादेव ही थे, ठीक है? देवों के देव महादेव शिवा ही थे. एंड जो सबॉर्डिनेट गॉड्स थे, मतलब देवर थोड़ा रिच इन देयर कॉन्शियसनेस, ठीक है? वो आई फाउंड दैम रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन. तो जैसे जैसे मैं स्टोरीज़ देख रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि इनकी चेतना में क्या फ़र्क है, ठीक है?
तो कुछ चीज़ें थी, मतलब फिर भी ग्रीड भी थी इंदिरा में. ही वांटेड थ्रोन सो मच. ठीक है. एक होता है डिज़ायर होना, इट्स फाइन, बट ग्रीड देखी मैंने इंदिरा में, बिकॉज उसने अपनी ग्रीड के लिए कुछ चीज़ें करी विच वरंट गुड, एंड ही वेंट थ्रू इट. उसको वो लेसन लेकिन उसने जल्दी समझ भी लिया. ठीक है. उसका जो ग्रीड का लेसन था उसने समझ भी लिया. ठीक है. सो वो भी एक चीज़ हुई, राइट. सो या दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट कि जो ज़्यादा लो चेतना में चले जाते हैं दे हैव मोर डिज़ायर्स. ओके. एंड दैट वाज माई पॉइंट और से. और जो डम्बलडोर ने एग्जैक्टली सही पकड़ी. थैंक्स टू J.K. Rowling, शी मेक्स सो मच सेंस. सो या, now let's come to how I manifested my karmas first. So what did I really do? So for manifesting my own karmas, I just had to let universe decide. I just had to let nature decide. I just had to let my spirit decide and not my mind decide it. Now what is really happening outside is that mind जो है वो डिसाइड कर रहा है. ठीक है. जो जो सारे सेल कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्ट कर लो, ये मैनिफेस्ट कर लो, वो सबसे पहले तो वो माइंड की डिज़ायर है, आपकी स्पिरिट की डिज़ायर नहीं है. बहुत सारी डिज़ायर्स ऐसी हैं जो माइंड से उत्पन्न हो रही हैं. ठीक है. और क्योंकि कहीं ना कहीं आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो डिज़ायर्स मुझे फुलफिल फील करवा देंगी. ठीक है. बट वॉट यू रियली नीड, जो आपकी डीपेस्ट ऑफ डिज़ायर्स है ना, वो एज अ ह्यूमन बींग मैं बता रही हूँ. यू एंड आई, वी बोथ रिलेट टू ईच अदर एज अ ह्यूमन बींग, राइट. सो what I felt inside me was that I needed, the true wisdom, that, you know, and I wanted answers basically for the questions that I had. And I got, and I feel fulfilled now. Actually, one of my friends did tell me, she said, you used to be very, upset, in school and everything, while you were in school and everything. And yeah, it's so true. While I was growing up, I had to face a lot of struggles and problems because I didn't fit in. I didn't fit in at all. And I think we can keep that as another topic for someday. What did I feel? Because what I felt and what I went through is so different. I don't think so anybody would have went through it, because I am a different person completely. So whatever, we'll check on that some other day. But yeah, one of my friends did said to me that you were so upset while you were growing up. You had so much questions, and now you're like at peace. Now you're feeling fulfilled, and that has been my story. Really, that has been my story. And really, my desires have really decreased over time. So where was I again? What was the point I was sharing? Yeah, so I manifested my karmas. And why I manifested my karmas? Because I let my spirit decide, my soul decide, nature decide, universe decide. जो manifestation वाले जो सेल हो रहा है आजकल, एवरीथिंग दैट इज सेलिंग, उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आप वो माइंड के, पहली बात तो वो माइंड का डिज़ायर है. ठीक है. और माइंड का डिज़ायर काफ़ी सुपरफिशियल है. ठीक है. उससे आपको टेम्प्रेरी मिल जाएगा, बट वो परमानेंट जो है ना, वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी सोल की डिज़ायर पूरी होगी. ओके. तो पहली बात तो वो माइंड का डिज़ायर है जो मैनिफेस्ट करवा रहे हैं आजकल लोग, ये सब जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं. एंड देन वो जो सेल कर रहे हैं वो माइंड के पावर से ही सेल हो रहा है. वन थिंग इज़ दैट. ठीक है. तो येस, दैट वर्क समटाइम्स. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका माइंड का पावर कितना है. ठीक है. और माइंड का पावर आपके चेतना से फ़र्क पड़ता है. आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उतना ही आपका माइंड पावर भी होगा, राइट. सो और जिनकी उससे भी ऊंची चेतना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट manifesting. They are not manifesting their mind's desire. They are waiting for their soul. They are waiting for this universe, nature. Let them decide what is to be manifested right now and what is not to be manifested right now. So ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे सोल्स के सामने उनके कर्मास आते हैं.
कहीं ना कोई हल्की सी इंट्यूशन उन्हें आ जाती है, यू नो. आई ऑल्सो हैड दैट नज, आई ऑल्सो हैड दैट इंट्यूशन. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इंट्यूटिव person out there, and so I also had that, but I didn't believe it, you know. कि ये मेरी इंट्यूशन है. So yeah. Yeah, I didn't believe it कि मेरी इंट्यूशन है, but yeah. खैर, बट येस, कहीं ना कहीं आप देखोगे, आपकी या तो डिज़ायर होगी, आपको एक अट्रैक्शन फील होगी उस सिचुएशन में, यू नो, उस एक्सपीरियंस को लेकर. यू विल फील दैट काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन या डिज़ायर या कुछ, यू नो. तो आपका जो सोल है वो मैनिफेस्ट करवा ही लेता है, ठीक है. आपको, यू नो, नेचुरली वो एक डिज़ायर फील होगी सिचुएशन में आने की, उस एक्सपीरियंस में आने की. And that's how, you know, and then you will go through your karmas, you will go through your, you know, karmic situations, okay, and you will have your lessons. First of all, I really believe, मेरा mind ऐसा work करता है कि it really believes that karma are not punishment. Karma is karmas are lessons and not punishment. All right, that's exactly how I believe. Okay, so yeah, I manifested my karmas. Okay, तो I let my spirit decide. अब जो माइंड होता है ना, ये माइंड एक ऐसा मशीन है दैट इट सीक्स कंफर्ट ऑलवेज, ठीक है. तो ही, अब जिस चीज़ को कंफर्ट चाहिए वो डर नहीं चाहता है, इज़न्ट इट. वो डर से डरेगा, इज़न्ट इट. वो डिफ़िकल्ट डेंजर से डरेगा. तो हमारा माइंड ना काफ़ी एक सिक्योरिटी वाली चीज़ है, ठीक है. इसको कुछ भी वो नहीं चाहिए. और स्पिरिट कैसा है? स्पिरिट इज़ फ्री. इट्स लाइक ऑन फायर बेबी. स्पिरिट इज़ लाइक ऑन फायर कम्प्लीटली. सो वॉट इट विल डू इज़, स्पिरिट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे माइंड को डर लग रहा है. स्पिरिट वॉट इट वॉन्ट्स, या तो आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन है, या कई बार आपकी डेस्टिनी भी लिखी होती है, आपकी गुड डेस्टिनी भी लिखी होती है, आपके सोल लेसन्स भी लिखे होते हैं. सो सोल लेसन्स आर समथिंग आर वेरी गुड, देन दे आर कार्मिक लेसन्स विच आर लिटिल पेनफुल, ओके. बट ये हमारा माइंड है, ये कंफर्ट मशीन है, उसको पेन नहीं चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे सोल्स होते हैं जो पीछे हट जाते हैं. तो सबको ऐसा लगता है ना कि इंट्यूशन एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये अच्छा है. बट इमेजिन, लोग अपनी इंट्यूशन को ऐसे भी यूज़ करते हैं. कई बार उनको नज आती है कि यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड, और वो पीछे हट जाते हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो स्पिरिचुअल गिफ्ट भी अगर आना चाहिए आपके पास, तो भी आपको तभी आना चाहिए जब आप लिटरली मैच्योर हो जाते हो, ठीक है. और सबके पास गिफ्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से आपको ये अचीव करते हो, समथिंग लाइक दैट. ये आपके गिफ्ट्स अपने आप ओपन होते हैं व्हेन यू वॉक योर स्पिरिचुअल पाथ, ऑलराइट. एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल, इन अ वेरी, यू नो, लॉजिकल सेंस ये ओपन अप होते हैं आपके, राइट. एंड सो कुछ लोगों की इंट्यूशंस हल्की हल्की है जो भी होती हैं, पर उनके पास विजडम नहीं होती है, ठीक है. तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम उनकी लाइफ में. तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो भाग जाते हैं अपने कर्मास को देखकर कि यार ये तो कार्मिक सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, लेट्स जस्ट रन फ्रॉम इट. बट समटाइम्स यू सपोज टू फेस इट, समटाइम्स यू आर सपोज टू फेस इट, हैव लेसन्स, ओके. आपका स्पिरिट डजंट केयर, स्पिरिट वॉन्ट्स लेसन. जैसे कहते हैं ना, स्पिरिट, आप कह सकते हो वो स्पिरिट का फूड है, ठीक है. Imagine you were just an unmanifested celestial body out in the space, right? And you just fucking came here to experience every emotion, every feeling. Your soul needs those lessons. Your soul needs to learn something. That is its food. For that, it only came here on this planet, you know. So, एंड आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, आपके रिप्रेस्ड माइंड्स बन गए हैं. ओवर द मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स हमने रिप्रेस्ड माइंड बनाए, हमने, यू नो, फर्दर ईगो बनाई, एंड, यू नो, टू सेव आर सेल्फ, टू कम्फर्ट आर सेल्फ. बट स्पिरिट वॉन्ट्स लेसन, इट डजंट केयर. तुम्हारा डर भाड़ में जाए, तो वो आपको ना, आपका सोल आपके सामने वो लेसन्स लाता रहेगा, लाता रहेगा, लाता रहेगा. दैट्स हाउ नेचर वर्क्स, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ओके. So yeah, I mean, so that's how I manifested my karmas. I didn't let my mind come in. मैंने डर को अंदर नहीं आने दिया. I said that I bow down to whatever situations came into my life,
और मैंने सबसे पहले अपने कार्मिक सिचुएशंस ही मैनिफेस्ट किए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्मिक ही मैनिफेस्ट होंगे। सी, हर सोल का लेवल अलग है, हर सोल की स्ट्रेंथ अलग है, ठीक है। योर सोल एग्जैक्टली नोज कि आपके माइंड की भी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो आपके माइंड को भी देख कर चलता है। सो देर आर सर्टन सोल्स जो कॉन्शियसली चूज़ करते हैं अपनी कार्मिक सिचुएशंस में ही बॉर्न होना भी, ओके। देर आर सर्टन सोल्स जो चूज़ करते हैं अपनी कार्मिक सिचुएशंस में ही बॉर्न होना। So why am I saying this? Because actually they are because वो पहले कर्मा क्लियरिंग कर लेना चाहते हैं, ओके। अगर आप सदगुरु को भी देखो तो उन्होंने भी एक बार ये बोली थी बात कि यू नो इफ़ यू क्लियर योर कर्मास बिफोर हैंड, यू नो वाइल यू आर यंग एंड एवरीथिंग, लेटर ऑन यू कैन गिव योर डिवोट योर लाइफ टू योर एवोल्यूशन, यू कैन डिवोट योर लाइफ टू रेज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। सो दैट्स एग्जैक्टली वट ही ऑल्सो थी। ये एक इंटेलिजेंट सोल की निशानी है। मैंने अपनी एक रील बनाई थी, मैंने उसके अंदर बोला था कि हर सोल कॉन्शियसली बर्थ नहीं लेता है, कुछ सोल कॉन्शियसली बर्थ लेते हैं, कर्मा क्लियरिंग करते हैं और अपने सोल को रेज करते हैं, दे रेज देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड देन दे आर सर्टन सोल्स जो अपनी टेंडेंसीज़ के बेसिस पे पैदा होते हैं, अपनी अटैचमेंट्स के बेसिस पे पैदा होते हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि अटैचमेंट्स कहाँ हैं, टेंडेंसीज़ कहाँ हैं, वो वहीं पर बॉर्न होंगे, ठीक है, रादर देन गेटिंग बॉर्न into families or into situations where, you know, into karmic situations. So, you know, different types of that's why we say, you know, when we die we take nothing with us, only level of consciousness, only a level of consciousness that you take with you, that's it, nothing else, okay. So this is one more thing, just a second. What else was I saying? Yeah. So this is what I want to say कि so ये एक अच्छे सोल की निशानी है, ये एक हाई लेवल सोल की निशानी है कि आप पहले कर्मा क्लियरिंग कर रहे हो। और लेकिन फिर भी ज़रूर अब ईगो पे मत ले लेना कि अब मैं सारे कर्मास क्लियर करूँगा। नो, आपका सोल एग्जैक्टली जानता है कि कितनी कर्मा क्लियरिंग करनी है, कितना कब कब बीच में रेस्ट आना चाहिए। देयर आर सर्टन सोल जिनकी लाइफ में धड़ा कर्मा क्लियरिंग ये होती रहती है, बिकॉज दे आर केपेबल। कहते हैं ना कि गॉड आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशंस भेजता है और जितनी उतनी सिचुएशन भेजता है जितने आप केपेबल होते हो। एग्जैक्टली दैट। अगर आपने अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम कर लिया ना तो आपकी कर्मा क्लियरिंग भी धीरे धीरे होगी। क्यों? क्योंकि अब आप थोड़े से कहीं ना कहीं वीक हो गए हो, मेंटली भी, इमोशनली भी, तो कर्मा क्लियरिंग अब धीरे धीरे होगी। अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हाई है तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज़ द आंसर फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज उनको अपना उनका सोल जो है उनसे कर्मा क्लियरिंग करवा रहा है या उनको सोल्स लेसन दे रहा है, उनका सोल्स को इवॉल्व करवा रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग। और मुझे एक और बात बताई, मैं भूल गई यार। एक तो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं ना, इट्स जस्ट या आई वांटेड टू से कि देयर आर सर्टेन सोल्स जो ऐसी फैमिलीज़ में पैदा आपको। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि कई बार आपके बहुत क्लोजेस्ट लोग आपके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स योर ओन पेरेंट्स आर योर कार्मिक पार्टनर्स, ओके। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्चुअली most of the time. So yeah, that is again another thing. That is again one another thing. Okay, so I think I just gave अच्छा, एक अर्जुन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। अर्जुन ने भी मैनिफेस्ट किया ना महाभारत। जितनी कौरवों ने मैनिफेस्ट करी महाभारत, उतनी पांडवों ने भी मैनिफेस्ट करी महाभारत, ठीक है। बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड अ थ्रोन एंड एवरीथिंग एंड दे ऑल्सो हैड दैट बिटरनेस टुवर्ड्स देयर ब्रदर्स, इजंट इट? Pandavas also have bitterness towards their brothers. They both manifested Mahabharata. And एंड में क्या हो रहा था?
अर्जुन अपने अपने कर्म से ही भाग रहा था। जो उसने मैनिफेस्ट किया है, अब उसको उसे जीना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, उसे सोल लेसन आगे लेना पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं लेना चाहता, वो उसका माइंड बीच में आ गया, वो डर गया है कि यार मैं मर गया तो भैया तू सोल लेसन ले कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, यू नो, when you somewhere wanted war, आप अपने लेसन लो, अपने माइंड को लेसन दो कि अगर वॉर अगर आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, यू हैव टू फाइट दैट वॉर। दो कृष्णा ने पांडवों को ही जताना था क्योंकि कौरवास वर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, व्हाट दे हैड डन विद Panchali was so wrong. So Krishna made a point, कि will make Pandavas only win. At least they were better, in terms of, और आप इसको देख सकते हो एग्जैक्टली ऐसे ही हिंदू मिथ में भी आजकल ऐसे ही चल रहा। आप देखोगे, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, राइट? जैसे देव जो थे, दे वर स्टिल एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, just because वो physically weak हैं, that doesn't mean that, and and that doesn't mean that you have to conquer over them, or I mean you know what I mean, right? So yeah, जो अर्जुन था वो खुद ही उससे भाग रहा था फाइनली, and then Krishna had to read the whole Bhagavad Gita to him, right? So yeah, सो लोग मैनिफेस्ट करते हैं अपनी सक्सेस, मैंने मैनिफेस्ट करी अपने कर्मास। तो आई एम अ फूल और नॉट? नो, आई एम नॉट अ फूल। वाई? बिकॉज आई लेट माई स्पिरिट डिसाइड, आई लेट माई सोल डिसाइड, एंड इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। हो सकता है इफ़ यू लेट योर सोल डिसाइड, इफ़ यू लेट योर स्पिरिट डिसाइड, देन आपकी लाइफ में एकदम कर्माज नहीं आए, क्या पता आपकी लाइफ में पहले सक्सेस आ जाए, ठीक है? बिकॉज आपका सोल जानता है एग्जैक्टली अभी क्या मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? यू हैव टू लीव इट टू इट, ओके? डोंट लेट योर माइंड कम इन, दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो I think I'm not a fool. What do you think? All right, like, share, subscribe. Thank you.